بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 17۔ میں نے بظاہر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بازو کو تھام کر کہا، رے دینا چاچا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر تم پاگل ہو گئے تو میں تم پر مقدمے کیسے کروں گا؟ نہیں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ دینا چاچا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تدبیر کارگر ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، میں پاگل ہوں، ککڑو پڑ ہوں، میں مرغے کی اولاد ہوں، ککڑو پڑ ہوں، میں اب انڈے دوں گا۔ ککڑو بیٹھ گیا جیسے انڈے دینے کا قطعی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے پھر اس کا بازو پکڑ کر کہا، ارے یہ کیا کرتے ہو؟ مرغے انڈے نہیں دیتے۔ ہاں، وہ چل کر کھڑا ہوگا، ہاں میری مرغی انڈے دے گی۔ کہاں ہے میری مرغی؟ وہ ایک چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف گیا، پھر اسے ایک جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے دروازے پر آ کر دیکھا، باہر تمام لوگ اس کے پھٹے ہوئے گریبان کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ اکڑو بیٹھ کر کہہ رہا تھا، کہاں ہے میری مرغی؟ ککڑو کڑو ہوں، مرغی پکارو، میں مرغی ہوں، میں مرغی بن گئی ہوں کہ چمن میں، ہائے میری مرغی۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک کے اس طرح رینگنے لگا جیسے مرغی کو تلاش کر رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں اس کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی۔ کتنے ہی معزز لوگ اسے پکڑ رہے تھے، جوڑ کر پوچھ رہے تھے اسے کیا ہو گیا، وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ جواب میں وہ الٹی سیدھی ہانک رہا تھا۔ کچھ ذمہ دار میری طرف آئے، ایک نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں اسے اپنی زمینوں کے اصل کاغذات دکھائے تھے، اور میرے چچا جان کے ساتھ مل کر مجھے وہ قانوناً جو کاغذات تھے وہ بدل لیے تھے۔ اس کا ٹھوس ثبوت میرے پاس دیکھ کر اس کے دماغ کو صدمہ پہنچا ہے۔ یہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ مجھے تو اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس سے ہمدردی ہے تو اسے لے جا کر بند کر دیجیے۔ اس کا پاگل پن خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ بہرحال آج نہیں تو کل اس کی دماغی حالت درست ہوگی، میں اسے عدالت میں ملوں گا۔ ایک ذمہ دار نے پٹواری کی طرف سے التجا کی، فرحاد، یہ درست ہے کہ اس نے تمہیں دھوکا دیا، لیکن قدرت کی طرف سے اسے سزا مل رہی ہے۔ بیٹے اسے معاف کر دو، صلح صفائی سے اپنا حق حاصل کر لو۔ میں نے کہا، اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت تک بات نہ جائے تو میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا، لیکن ابھی چند باتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہاں ہو جائے، اور ہو جائے گا۔ سب لوگ مجھے یقین دلانے لگے، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم سب بیٹھک میں آ گئے۔ رحیم اور ایک ملازم پٹواری کو بھی لے آئے۔ اب وہ صرف مانگے دے رہا تھا مرغے کی طرح، لیکن کبھی سر جھٹک کر، ہاتھ نچا کر زہریلا بڑبڑاتے ہوئے اپنے پاگل پن کا ثبوت دے رہا تھا۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے تو میں نے کہا، یہ حویلی میری ہے کیونکہ میری زمین پر ہے اور اسے میرے والد نے تعمیر کرایا تھا۔ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پٹواری نے اعتراف کے طور پر بانگ دی، ککڑو کڑو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ مرغ کی اولاد اب اس حویلی میں نہیں رہے گا، جتنی جلدی ہوگے یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ اس حویلی میں جو بچپن سے ملازم ہیں وہ میرے ملازم رہیں گے۔ ان میں جمیلہ اور رحیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس لحاظ سے میں اپنی ملازمہ جمیلہ کی شادی ایک پاگل بوڑھے سے نہیں ہونے دوں گا۔ جمیلہ کی شادی میری مرضی سے ہوگی۔ وہ سب چپ رہے۔ جمیلہ کے بوڑھے باپ نے اٹھ کر کہا، وہ پٹواری قرض دار ہے، میں نے اسے یقین دلایا وہ قرضہ میں اتار دوں گا۔ اس کے باپ نے خوش ہو کر کہا، تو پھر جمیلہ کی شادی آپ ہی کی مرضی سے ہوگی۔ میں نے رحیم سے کہا، رحیم تم یہاں آؤ، آدھ گھنٹے میں غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، جمیلہ کا نکاح تم سے پڑھایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی رحیم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ فرتے مسرت سے کانپ رہا تھا۔ دروازے سے دوڑتا ہوا آیا اور میرے قدموں سے لپٹ کر
कर कहने लगा, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा, मैं इंसान हूँ, मुझे फरिश्ता न बनाओ, चलो उठो, जो कह रहा हूँ फौरन इस पर अमल करो। उठकर वहाँ से चला गया। जरा सी देर में ये बात फैल गई कि दूल्हा बदल गया। अब जमीला की शादी रहीम से होने वाली है। पटवारी के पागलपन की खबर पहले ही फैल चुकी थी। ताम हवेली में क्या तमाम जनान खाने में हर जगह चहमगोइयाँ हो रही थी। किसी को हैरानी थी कि जमीला की तकदीर कैसे बदल गई, किसी को तजस्सुस था कि पटवारी पागल कैसे हो गया। ये दोनों बातें न जाने वहाँ कितने दिनों तक दिलचस्पी का बहस बनने वाली थी। जिन्हें पटवारी से हमदर्दी थी और जिन्हें मेरे फैसले पर गुस्सा आ रहा था, वो इस वक्त हवेली छोड़कर चले गए। कांटे खुद ही रास्ते के साफ हो गए थे। 1 घंटे बाद जमीला और रहीम का निकाह पढ़ा दिया गया। फिर खाने पीने और हंसने बोलने में शाम हो गई। जब दावत में शरीक होने वाले रुखसत हो गए तो मैं बरसों की बिछड़ी हुई हवेली को देखने के लिए अंदरूनी हिस्से में चला आया। मैंने 6 बरस की उम्र में इस घर को छोड़ा था। एक बूढ़ी औरत ने मुझे वो कमरा बताया जहाँ मैंने जन्म लिया था। वहाँ कितनी कमरे और कितनी ही चीज़ें ऐसी थी जो माजी की याद लेती थी। वो बूढ़ी मेरे वालिदैन की ज़िंदगी का एक सफ़ा खोलती जा रही थी, एक एक बात बताती जा रही थी। मैं चश्मे तसव्वुर में अपनी वालदा की मोहब्बत और वालिद की अजमत की कितनी ही तस्वीरें देखता जा रहा था। फिर मैं दलान में आ गया। वहाँ चंद औरतें खड़ी हुई थी। मुझे बताया गया इनमें से कुछ मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, कुछ जमीला और रहीम के अजीज़ो कारब। इनके दरमियान शादो सर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर मुझे यह नदामत हुई। इस दौरान मैं उसे बुला बैठा था। मुझे पटवारी के सामने इस लड़की के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए था, लेकिन फैसले कैसे होता? वो तो पागलपन का ढोंग रचा रहा था, मेरी किसी बात का सही जवाब न देता। अब तो वो इस हवेली से जा चुका था। मैंने सोचा कल उस शादो को मुतल्लिक बात करूँगा। इतने में रहीम ने कहा, हजूर ये शादो ने पटवारी के साथ जाने से इनकार कर दिया है, कहते हुए इस हवेली में रहेगी और आपकी खिदमत करेगी। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा। मुझे अपनी खिदमत कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर ये यही रहेगी, कहीं से इसके रिश्ते की बात आए तो मैं इससे शादी करा दूँगा। शादो ने सर झुका लिया। रहीम मुझे दुल्हन के कमरे में ले आया। जमीला सेज पर घूंघट गाड़े बैठी थी। जब उसे बताया गया कि मैं आया हूँ तो उसने हाथ उठाकर अदाब कहा और सही से उतरकर मेरे कदमों को छूना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसके सर पर हाथ रखकर बुजुर्गाना अंदाज में उसे दुआएं दी और रहीम से कहा, इससे वो मेरा खास मुलाजम है। ज़मीनों की आमदनी का हिसाब और हवेली की निगरानी उसके ज़िम्मे होगी। उसकी एवज़ दोनों मियाँ बीवी को खाने कपड़े के अलावा 200 रुपये माहवार मिला करेंगे। मैंने 2 मोहब्बत भरे वाले दिलों को मिलाया था, इनकी शादी कराई थी, इनके लिए रहायश और रोज़गार मुहैया कर दिया था। अब मैं इनके दिलों का हाल पढ़ रहा था। वो खुशी से बेहाल हो रहे थे। उनके दिलों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत थी, इतनी अकीदत थी, अगर खुदा का हुक्म होता तो मुझे सजदा करने के लिए तैयार हो जाते। इसी वक्त वो सोच रहे थे आग सुहाग की पहली रात को शुक्राने की नमाज अदा करेंगे और अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाकर मेरी दराजी उम्र की दुआ मांगेगा। मैं वहाँ से बैठकर में आ गया। कमरे में लालटेन की जर्द रोशनी फैली हुई थी। शहर के हंगामों से दूर वहाँ मुकम्मल सन्नाटा और सुकून था। ऐसी जगह तन्नी अमल और ख्याल खाने की मशकों के लिए नहायत ही मौजूद होती है। मैंने अपने जूते और लिबास उतार दिए। मेरे जिस्म पर सिर्फ एक अंडरवेयर रह गया था। इसके बाद मैं योगा की मशकें करने लगा। आध घंटे बाद बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब मुझे पटवारी की खबर लेनी थी। इस हकीकत तो मैं जानता था कि वो पागल नहीं, लिहाजा वो पागलपन के पस पर्दा मेरे खिलाफ कुछ साजिश भी कर सकता था। मैं थोड़ी देर तक उसके मुताल्लिक सोचता रहा, फिर आंखें बंद करके उसका तसव्वुर किया। वो जहाँ भी था तन्हा था, क्योंकि ख्याल ही ख्याल में वो अपने आप से बातें कर रहा था। क्या मुसीबत है, मैं कब तक इन जंजीरों से बंधा रहूँगा। मैंने तो मामूली से पागलपन का मुजाहरा किया था। इस बेज़रर पागल को जंजीरों में जकड़ा नहीं जाता, मगर मेरा बड़ा बेटा मुझे खतरनाक पागल समझ रहा है और दूसरों को भी समझा चुका है। मैं इसकी चाल को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मुझे पागल खाने में भेजकर तमाम ज़मीन और जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। पागल का पुत्र अपने बाप को वाकई पागल समझ रहा है। वैसे वक्ती तौर पर पागलपन बनकर मैं दोस्तों और दुश्मनों के
अफसोस नहीं किया। वो तो पहले ही मुझसे खार खाए बैठी थी, क्योंकि मैं जमीला को उसकी शौकर बनाकर लाने वाला था। अब वो खुश है, मेरे सामने कई बार भाई आ चुके दुआएं मांग चुकी है कि मैं हमेशा के लिए पागल हो जाऊं। औरत के लिए एक पागल खामद इस होशमंद खामद से 1000 दर्जे बेहतर होता है जो शौकन लाता है। मेरी बर्बादी इसकी खानाबादी है, इसलिए वो बहुत खुश है, बड़े सुकून से सो रही है और दूसरे कमरे से इसके खराटों की आवाज़ें भी आ रही हैं और मैं उल्लू का पट्टा बनकर जाग रहा हूँ। मुझे जोर की भूख लगी है, किसी ने अब तक मुझे एक लुकमे के लिए भी नहीं पूछा। ये लोग क्या समझते हैं कि पागलों को भूख नहीं लगती? हमारे कोई नहीं है बगैर तो कमीनों, मैं सारी उम्र अपनी कमाई तुम्हें खिलाता रहा, आज तुम में से कोई मुझे रोटी का एक टुकड़ा भी खिलाने को तैयार नहीं है। ये कैसी दुनिया है? फराद जैसे लोगों से सब कुछ छीनता रहा, अब मेरी औलाद वो माले गनीमत मुझसे छीन लेना चाहती है। मुझे पागल समझकर रोटी का एक लुकमा भी नहीं देना चाहती। जब से ये दुनिया आबाद हुई है, छीनने और चपटने का अमल जारी है। अगर मैं सारी उम्र दौलत समेटने की बजाय अपनी आखिरत संवारता तो आज मुझे पागल बनने की ज़रूरत पेश न आती। ऐसे वक्त ही बात कितनी सच्ची और खरी साबित होती है कि इस दुनिया के लोग हमसे इस दुनिया की तमाम चीज़ें छीन सकते हैं, लेकिन नेकी से हासिल होने वाली कोई भी आकबत कोई नहीं छीन सकता। खुदाया, वक्ती तौर पर पागल बनकर मैंने तेरी दुनिया का असल चेहरा देख लिया। मैं सदके दिल से तौबा करता हूँ, मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। मैंने अब तक जिन लोगों पर जुल्म किया है अब इनकी तलाफी करूँगा, जिनका नुकसान किया है इनका नुकसान पूरा करूँगा। मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं शादों को बेटी बनाकर दलाली करता रहा और एक बाप के रिश्ते की अजमत को मजरूह करता रहा। अब मैं वाकई एक बाप का फ़र्ज अदा करूँगा। मैं उसे किसी अच्छे घराने में इज्जत व आबरू से ब्याह करके रुखसत करूँगा। कल सुबह जमीला के पास भी जाऊँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा और एक बाप बनकर उसके सर पर हाथ रखूँगा। काश मेरी तरह दुनिया के तमाम लोग पागल बन जाते और मेरी तरह नेकी और सच्चाई के रास्ते को पा लेते। ये दुरुस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा अक्लमंदी के ज़ोम में खुदा से दूर हो जाता है। खुदा तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी की नहीं दीवानगी और जज्बातियत की ज़रूरत होती है। वो सोचते सोचते एक साथ के लिए रुक गया, फिर कुछ देखने लगा। उसके मतलब उसका दिमाग सोचने लगा। वो सोच रहा था कि दरवाज़ा खुल रहा है। उसका बड़ा बेटा जो अब्दू दहलीज पर खड़ा अपने बाप को घूर घूर कर देख रहा है और अब वो दहलीज पार करके दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा है। इस वक्त पटवारी ने कहा, दरवाज़ा बंद ना करो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी जंजीरें खोल दो। दरवाज़ा खोल दो। तुमने क्या समझा मुझे? ये समझ कर कैद किया कि मैं पागल हूँ? पागल? अब्दू की सोच उभरी, मेरे दिमाग तक वो पहुँची। पहले पहल जब मैंने ख्याल ख्वानी की इब्तिदा की थी, इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स की सोच को पढ़ सकता था। अगर दो शख्स बातें कर रहे हो तो एक वक्त में एक ही शख्स की सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुँचती थी, लेकिन अब ये इल्म रफ्ता रफ्ता वसअत अख्तियार कर रहा था। मेरी दास्तान हयात के इस दिलचस्प पहलू को समझने के लिए किसी हद तक टेलीपैथी को समझना ज़रूरी है, और टेलीपैथी को समझने के लिए इंसानी दिमाग की कारफरमाइयों को समझना लाजमी है। हमारा दिमाग हमारी अपनी बातें नहीं सोचता, हम जिसे छूते हैं और इस छूने के रद्द अमल को भी सोचता है। हम जिस चीज़ को चखते हैं इस चखने की लज्जत का तजर्बा भी करता है कि कौन सी चीज़ लो है जो मज़ा देती है। हम जिसे सूंघते हैं उसे भी हमारा दिमाग बताता है वो किस नौइयत की है। इस तरह अपने सामने वाले की बातें जब हम कानों से सुनते हैं तो वो पहले दिमाग तक पहुंचती है। अगर पहुंचे तो हम आवाज़ को, लफ्ज़ों की तरकीब को, कहने वाले की ज़बान को, उसके कहने के मफ़हूम को ना समझ सके तो ये हमारा दिमाग है। ये शाफाफ आईना है, जो भी सामने आता है वो वक्ती तौर पर दिमाग के आईने में नक्श हो जाता है। सोच के समंदर का नाम दिमाग है और दिमाग एक टेप रिकॉर्ड भी है। इस रिकॉर्ड के सामने जो बोलता है उसकी रिकॉर्ड टेप हो जाती है। इस तरह अब्दू जो कुछ सोच रहा था उसे पटवारी के दिमाग का टेप रिकॉर्ड कबूल कर रहा था। उसके दिमागी रिकॉर्ड को मैं सुन रहा था। पागल, अब्दू की आवाज़ पटवारी के दिमाग से नशर हुई। अब्बा तू पागल है और पागल को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं। ओए
पागल दे पुत्र बकवास ना कर, मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं फरहाद को धोखा देने के लिए पागलपन का ढोंग रचा रहा था। ठीक है अब्बा, दुनिया तो यही समझती है ना कि तू पागल है। इनकी समझ के मुताबिक तुझे पागल रहकर फौरन खुदकशी कर लेनी चाहिए। सब लोग अफसोस करेंगे और यही समझेंगे कि तूने दीवानगी के आलम में खुद को हलाक कर डाला। एक पागल अपने पागलपन से किसी वक्त भी मौत के मुंह में पहुंच सकता है। तुझे अमली तौर से कुछ साबित करना चाहिए। मैं खुदकशी नहीं करूंगा, तेरा दिमाग चल गया है। मेरा दिमाग अभी दुरुस्त है, तेरे कहने से मैं खुदकशी नहीं करूंगा। अभी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अभी मुझे अपनी गलतियों की तलाफी करनी है। हाँ, ये तू क्या कर रहा है? ये जंजीर का हल्का क्यों बना रहा है? नहीं, मुझसे दूर हो जा। देख, मेरे करीब ना आना। ये हल्का मेरी गर्दन में नहीं डालना। मैं समझ गया हूँ तेरे खतरनाक इरादों को, समझ गया हूँ। बेईमान बज़ात अपने बाप को मार डालना चाहता है। मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे, मैं तुझसे निपट लूंगा। आ आ ओ ओ पटवारी की आवाज़ कट कट कर रह गई।